Good morning, everyone, and welcome to this all ladies session. We are starting on a very sad note today. आज हमें बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि हमारे पूर्व चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मिस्टर पी.के. पंचाज हमारे साथ नहीं रहे। उनका आज सुबह 3 बजे देहांत हुआ है। तो हम उनके परिवार वालों के साथ हैं। We offer our condolences to the family of Mr. P.K. Pancha, the former Chief Commissioner for Persons with Disability, who passed away early morning today. So let's start with the session, and to facilitate it further, let's get all the ladies together. Zainab, can you take over from here? Yeah. Good morning, everybody. This is Zainab from the Bookshare team. I am a membership head, Asia Africa. And today is a very special session because we have two very prominent ladies with us. Mrs. Madhu Sharma, who is a deputy general manager in one of the leading MNCs, and Miss Shalini Khanna, who is the founder of NAB Delhi Hostess for Women. She is the advocate for girls' education and skill development, vocational training, and she'll tell you the rest. नमस्कार। आज बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज हमारे साथ है दो बहुत नामचीन लेडीज, जो है मिसेस मधु शर्मा, जो एक बहुत बड़ी एमएनसी में डेप्यूटी जनरल मैनेजर है, और मिस शालिनी खन्ना, जो फाउंडर है एनएबी हॉस्टस दिल्ली में, और जो गर्ल्स एजुकेशन की एडवोकेट है। उनको जॉब्स कैसे दिलवाना, स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, बाकी तो वो दोनों ही बताएंगे अपने लाइफ का जर्नी वगैरह। तो ओवर टू यू मधु। Thank you so much. Just a quick one. Can you hear me well? आप सुन पा रहे हैं मुझे ठीक से? Yes, Madhu, we can. Madhu. Okay, Yes, great. yes. Go on. All right. Thank you. And first of all, a very good morning to all the listeners out there, all the participants, all the active enthusiasts who joined us today. So thank you for joining in. And secondly, thank you to Bookshare Homiarji for providing me this opportunity to come and interact with all of you. To make me feel so important, where suddenly I'm feeling like, very grown up and somebody who may have a lot to share. So let's see what I have to share today. And also, it's an honor to share the stage, the virtual stage today with Shalini ma'am. Yes, she's a teacher to me. Um, she's a friend, philosopher, guide. That's what we call mentors. तो जो mentors होते हैं वो friends, philosopher, guides होते हैं। और yes, education field में मेरा मतलब बचपन से मैं शालिनी मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो एक मेरे लिए ये खास बात है कि आज मैं ये स्टेज उनके साथ शेयर कर रही हूँ। So beginning from the beginning, कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी वहीं से शुरू हुई जब हुई. So when I was born, that's when the story began, and that's when the story begins for everyone. So I was born in Delhi, Bharat mein, India mein. There's this place, right, the capital of India, and I happened to be blind since birth. So when I was born, I'm the second child to my parents. मेरी एक elder sister है और मेरा एक younger brother है. And my elder sister and I happen to be blind since birth. So what I'm going to do is I'm going to talk you through about my journey. कैसे मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मोड़ आए, इंटरेस्टिंग मोड़,
इंटरेस्टिंग सिचुएशंस, उनको कैसे मैंने ओवरकम किया. और एंड आई वांट टू लीव यू विथ अ फ्यू थॉट्स in the sense what is my learning that I have gained and that I want to pass on to all of you as well, ताकि आप भी अपने लाइफ में उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकें और कहीं भी थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट कर सकते हैं तो कर पाएं. So that's what I'm going to talk to you about. So I shared with you when I was born. I wouldn't share my age because I'm forever 21. Well, that's what I would like to believe. And uh, when I was born, my parents got to know that I happened to have the blindness. क्योंकि जब दीदी पैदा हुई थी तो एकदम से नहीं पता चला था. जब वो 3 months की हुई तब जाके धीरे धीरे पता चला. पहले ये पता चला कि शायद उसको कुछ दिमाग में इशू है, इसलिए वो देख नहीं रही है सबके तरफ, आई कांटेक्ट नहीं बना रही है. फिर उसके बाद क्लैरिटी आई एम्स के थ्रू कि उसकी डिसेबिलिटी है. फिर जब मैं आई तो मुझे तो देखते ही पता चल गया कि ऐसा है. पर मेरा आना और मेरा ऐसे आना एक तरीके से काफी अच्छा हुआ, क्योंकि उससे मेरे पेरेंट्स को वो एक जो होल्डिंग ऑन टू द एल्डर चाइल्ड था, वो फिर धीरे धीरे उन्होंने लेट गो किया, फ्रॉम मेकिंग हर एंड मी डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट. वो क्या होता है ना, जब एक बच्चा होता है तो पेरेंट्स को लगता है अरे इसको प्रोटेक्ट करना है, अरे इसका ख्याल रखना है, और वो समझ नहीं होती है. अब दो दो आ गए तो कहाँ कहाँ तक लटका के कैसे कैसे चलेंगे, क्या क्या करेंगे. सो उन्होंने धीरे धीरे हमको फ्रीडम देना स्टार्ट किया. और आज मैं जहां भी हूँ, जिस भी रूप में हूँ, जैसे भी हूँ, उसमें मैं उनका सबसे बड़ा रोल मानती हूँ. और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका रोल है, उस पर मैं अभी आती हूँ. बट सबसे पहला रोल मेरे पेरेंट्स का है, जिन्होंने एक सीड को जो बोया और उसको अच्छे से नर्चर किया, और एक प्लांट की तरह, they groomed us, they nurtured us, they gave us the best of education. And the best thing that our parents did to us, that made us into who we are, is one, freedom; two, confidence; and three, the independence and the space to be like any other child, not distinguishing between me and my brother, my sister and me and our brother, or between the children in the neighborhood who could see. तो हम लोगों में भेदभाव नहीं किया और अलग से नहीं रखा कि अरे ये बेचारे बच्चे, इनको अलग रखो, या ये भगवान के वो हैं, देन है, या ये भगवान का अभिशाप है. उस तरह की भावनाओं से हमें ना हम पे वो प्रोजेक्ट किए, ना उनके उनके वो हम पे डाले. सो दोज वर द कोर 3 थिंग्स जिसके वजह से हम आज जो बन पाए हैं, मैं आज जो बन पाई हूँ, वो मैं हूँ. देखिए, जो भी, जैसे एक पेड़ होता है, तो पेड़ को जब वो पेड़ कब बनता है? पहले तो बहुत ही एक सीड होती है, फिर वो जब सीड को नर्चर करते हैं, पानी देते हैं, सनलाइट मिलता है, और सांस लेना वो सीखता है, धीरे 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 करके वो बड़ा होता है. और उसका निखार, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्टेबिलिटी उसी चीज पे डिपेंड करती है कि उसकी रूट कितनी सॉलिड है. एंड दैट फाउंडेशन, दैट रूट, I think that foundation our parents laid really, really well. फिर हम बड़े हुए और मेरी दीदी सबसे पहले एक स्कूल में गई थी, ये अंध कन्या महाविद्यालय. ये एक ओनली फॉर ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल है. तब शंकर रोड दिल्ली में हुआ करता था, तो मेरे पेरेंट्स को उस वक्त उतना ही पता था. फिर उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, मैं 3-4 साल की थी, तो ये समझ लीजिए कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड हमारे पास खुद चल के आया. हमारे पास खुद एक अपॉर्चुनिटी आई, हमें बताया गया. उस वक्त विमल भैया होते थे, अभी तो वो नहीं है हमारे बीच, बट वो थे. उनका बहुत बड़ा हाथ था एनएबी को स्टेबलाइज करने में, एनएबी की फाउंडेशन में. तो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली के बारे में हमें पता चला, और हमारी एजुकेशन वहां से फिर कैरी फॉरवर्ड हुई. तो दीदी ने देखा ओनली फॉर ब्लाइंड गर्ल्स
स्कूल जहाँ पर सिर्फ ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया जाता था, वहां पर बहुत सी चीजें होती थी, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं भी होती थी। इन द सेंस वहां पे ना मैथ्स पे कोई फोकस होता था, और साइटेड बच्चों के साथ इंटीग्रेशन पे भी कोई फोकस नहीं था। दैट वाज़न्ट देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव। जब हम नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में आए, मैं और दीदी वहाँ के शुरू के आई थिंक 5-6 बच्चों में से हैं। उस वक्त मैं एनएवी की सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट होती थी। तो जब हमने एनएवी ज्वाइन किया, हमारे लिए मानो आसमान हमें मिल गया, आसमान को छूने की हमें शक्ति मिल गई। ये है मेरी जिंदगी की सेकंड एंड मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट सपोर्टिव, मोस्ट हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने मुझे आज पहुंचाया है जहां मैं हूँ। सो ये एक तरह से मेरा सेकंड होम, मेरे सेकंड पेरेंट्स हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली। सो वहां पर मैंने ब्रेल सीखी। ब्रेल सीखने के बाद मैंने मेरा एडमिशन हुआ, और यहाँ का सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो what that means what that means is that you get to study with sighted children, so you get to go to regular schools. So आज तक मुझे वो उस वक्त अनुराधा मोहित मैम, अनुराधा दीदी, अनु दीदी हम उन्हें उस वक्त बुलाते थे, वो वहां पर ध्यान रखती थी, और उन्होंने बोला कि इसको तो हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। and they were also learning, they were exploring, they were reaching out to schools, और उन्होंने हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। और सबसे पहले तो हम फेथ एकेडमी में गए। फेथ एकेडमी में ग्रेड 6 तक मैंने स्कूलिंग करी। फिर ग्रेड 7 ऑनवर्ड्स मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम में पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी लेडीज श्रीराम कॉलेज से। आई स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर एंड I'll come there also. मेरा सपना ये पढ़ने का नहीं था और बट या वो किया। तो सारे टाइम नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था। एजुकेशन, स्कूल में एडमिशन दिलवाने से लेके होमवर्क करवाना, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना। तो अगर हम स्कूल में हैं, कहीं फंस जाते हैं, मॉर्निंग में हम स्कूल में क्लासेस अटेंड करके आते हैं, जियोमेट्री नहीं समझ में आई कि ये कैसी फिगर है, तो हम वापस एनएबी दोपहर को जाते थे, वहां पर लंच करके फिर हमारी आफ्टर स्कूल क्लासेस होती थी। वहीं पे शालिनी मैम ने मुझे अंग्रेजी सिखाई। अगर थोड़ी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ मैं तो उसका क्रेडिट वेल शालिनी मैम आल्सो हैज इट। so so yeah, that's how I completed my education. Then नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से मैंने बहुत कुछ सीखा। लाइफ स्किल्स, मोबिलिटी, मोबिलिटी आना हमको बहुत जरूरी है, राइट? मोबिलिटी के बगैर अगर हम खुद पे विश्वास करके स्टिक उठाकर यहाँ वहां खुद नहीं मंडरा सकते, तो if we cannot go around on our own, then well, world is not going to take us around everywhere, every time, all the time. So gaining that independence also is something that I got from National Association for the Blind. I got that much courage that I could just pick up my stick. I got that much confidence that I could seek for help whenever I needed it. So then later I pursued English honors. I wanted to do psychology. पर वो क्या हुआ ना कि जब ब्लाइंडनेस आती है, ब्लाइंडनेस के साथ लोगों के दिमाग में बहुत से बैरियर्स आते हैं कि ये कैसे कर पाएगी, या ये प्रैक्टिकल्स कैसे कर पाएंगे, ये वो कैसे कर पाएंगे, ये फलान कैसे कर पाएंगे, ये ढमकान कैसे कर पाएंगे। और मैं उसकी शिकार हुई। उसकी शिकार ऐसे हुई कि मैं जब कॉलेज में गई, आई हैड द मार्क्स टू get into psychology honors, but I was told that because psychology involves a lot of practicals, you won't be able to do it. So then I thought I argued. थोड़ी सी बहस करने की आदत थोड़ी थोड़ी थी, बट बहुत ज्यादा मैंने नहीं की। उस वक्त मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ। फिर इंग्लिश पढ़ लिया मैंने, बहुत मस्ती भी की। कई लोग सोचते हैं कि पीपल विद ब्लाइंडनेस शायद सुस्त होते होंगे, या पढ़ाई करते ही ज्यादा होंगे, या म्यूजिक करते होंगे, लेकिन मैं बदमाशी करती थी। आई यूज्ड टू बी इन द सो LSR लेडीज श्रीराम कॉलेज हैज वंडरफुल बैकलॉन्स। वहां पे हम बैकलॉन्स में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर छोटे छोटे संतरे होते हैं, क्या बोलते हैं उनको मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ बहुत टेस्टी, खट्टे, चटाकेदार,
वो हम पेड़ से तोड़ के खाते थे। और मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग भी मैं उस वक्त करती थी। कई लोग सोचेंगे कि एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सेलिंग उतना आसान काम नहीं है, स्पेशली लिपस्टिक। तो बहुत सारा मैंने लिपस्टिक, क्रीम, साबुन वो सब भी बेचा कॉलेज में। और ऐसे करते करते मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। एंड देन आई started working. Well, I've been working since I was in well, grade 4. grade 4 में मैंने चूड़ियां, लाइटर, बुक मार्क्स, कैलेंडर्स ये सब बेचे हैं। उसके बाद grade 11 में मैंने ट्यूटरिंग करी। फिर कॉलेज फाइनल ईयर से मैंने proper professional career start kiya. I worked as a voice and accent trainer with a company called GE Capital International Services. That job also came to me through National Association for the Blind. National Association for the Blind first imparted me with computer skills, empowered me with computer skills, and then got me this job. उसके बाद NAB के थ्रू मैंने और एक जॉब की जहां पर एक्चुअली मुझे बुक शेयर के बारे में पता चला। फ्रीडम साइंटिफिक में एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर तब मैंने बुक शेयर पे खूब किताबें पढ़ी। एक किताब मैंने उस वक्त पढ़ी थी 5 लव लैंग्वेजेस। और तब यंग भी थी, अभी भी यंग ही हूँ, यंग तो खैर मैं फॉरएवर रहने वाली हूँ, दैट्स माय बिलीफ। बट तब यंग थी और माय माय कॉलीग देन, boyfriend later, husband now, Dinesh Kaushal, he also worked in Freedom Scientific. तो हमारी वो गहरी वाली पक्की वाली दोस्ती वहां पर हुई। And we've been married for close to 15 years now. तो तब मैंने वो 5 लव लैंग्वेजेस की किताब पढ़ी थी और दिनेश को भी वो किताब फिर मैंने बुक शेयर से शेयर करी। He is a more voracious reader as compared to me, but he read this book and then we discussed हमारी हम मेरी कौन सी लव लैंग्वेज है। And by the way, love language here does not mean romantic love only. हर किसी का एक के लिए भी हो सकता है, स्पाउस के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी। सो 5 लव लैंग्वेजेस, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग रीड देयर। मेरी बचपन की, सॉरी मेरे यंग एज की यादें हैं। इफ यू लाइक टू रीड, डू रीड दैट वन। आई रेड दैट बुक ऑन Bookshare and then many others. So so I did that. फिर फ्रीडम साइंटिफिक में काम करने के बाद मैंने वापस से बीपीओ सेक्टर में ज्वाइन किया और तब से लेके आज तक मैं उसी कंपनी में हूँ। आई वर्क विद फ्रीडम, वर्क विद an organization called Concentrix. Concentrix is a BPO, Daksh, IBM Daksh Concentrix. I've been with them for close to a little over 15 years now. मैंने उनके साथ एज अ वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर स्टार्ट किया था। वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल सिखाना, लोगों को एक्सेंट ट्रेनिंग करना, सॉफ्ट स्किल सिखाना, कस्टमर से बात कैसे करनी है वो सिखाना। कि ऐसे नहीं बोलना कि थैंक यू फॉर कॉलिंग एयरटेल, यू आर टॉकिंग टू मधु, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, से किस तरीके से आप अच्छे से इंटरैक्ट कर सकते हो वो सिखाया। So I did that for about 18 months and then I moved on into something called the behavioral training, learning and development. So I work with the L&D learning and development team. उसी टीम में मैंने ग्रो किया है और मैं कंटेंट डेवलपमेंट करती हूँ, मैं ट्रेनिंग करती हूँ अक्रॉस लेवल्स, मैं ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करती हूँ और बहुत सारा कंटेंट भी नीड बेस्ड डेवलप करती हूँ। And then of course I continue to do disability sensitization as I go along, fixing processes in my organization to make it more enabling for people with disabilities, and also sharpening my own saw. So that's on the professional front. And on the personal front, like I mentioned, I'm married to Dinesh Kaushal. He also happens to be 100% visually impaired. He is into the IT field. He's done a lot of work on NVDA और अभी वो सेपियंट में काम करते हैं। हमारा एक बेटा है, वो टीनेजर बनने वाला है जल्दी। बट एंड हम तीनों साथ में खूब मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, बनवाते भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा काम मैं खुद करती हूँ, ऐसा नहीं है कि घर का सारा काम मुझे ही को करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बट या इंडिपेंडेंटली वी आर लिविंग आवर लाइफ। सो इन सब चीजों को करने में मैंने जो एक इम्पॉर्टेंट बात सीखी है,
वो ये है कि एक तो अपनी जो एजुकेशन है उसको अच्छे से हमने सीखना है और इंडिपेंडेंट बनना है. दैट इज व्हाट हैज हेल्प्ड मी कि मैं अगर अपना काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंटली कर सकती हूँ, दैट इज मेकिंग प्रेजेंटेशंस, डिजाइनिंग कंटेंट, रिसर्चिंग, डेवलपिंग कंटेंट, ग्रूमिंग अदर्स, मूविंग अराउंड, यूजिंग टेक्नोलॉजी विद ईज, ये सब मैं अगर इंडिपेंडेंटली कर सकती हूँ, तो क्या होता है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है. और ताली दोनों हाथों से बजने के लिए बजाने के लिए दोनों हाथों को पास में आना पड़ता है. सिर्फ एक हाथ पास में जाएगा तो वो थप्पड़ ही बन के रह जाएगा, दूसरा हाथ जाएगा तो वो भी थप्पड़ ही बन के रह जाएगा. लेकिन अगर दोनों हाथ पास में आएंगे तो दमदार ताली बनती है. और दोनों हाथों को पास में आने का मतलब ये है कि मैं कुछ कदम बढ़ाऊंगी, अपनी इंडिपेंडेंस दिखाऊंगी, तो सामने वाला हो जो नॉन डिसेबल्ड है वो भी अपने आप मेरी तरफ अट्रैक्ट होके हम दोनों मिलके एक क्लैप बनाएंगे. सो एक मैंने ये सीखा कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. और दूसरा मैंने ये सीखा कि कई बार लोग बोलते हैं कि ब्रेल आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए. वेल, मेरे हिसाब से ब्रेल आना भी, आप टोटली ब्लाइंड हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं भी जाते हैं आप, कभी भी जाते हैं, कई बार ब्रेल लेबल्स लगे होते हैं लिफ्ट्स में, पैकेजिंग पे, तो वो आपको इंडिपेंडेंस देते हैं. तो इंडिपेंडेंट रहने के लिए मेन ब्लॉक जो है वो इंडिपेंडेंस है. तो इंडिपेंडेंट रहने के लिए ब्रेल आना बहुत जरूरी है. दूसरी बात जो है, अपना टेक्नोलॉजी पे आपको हैंड्स ऑन होना, हम सबको हैंड्स ऑन होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. और जितना हम अपना टेक्नोलॉजी के साथ अपने हैंड्स ऑन होंगे, उतने ही ज्यादा हम इंडिपेंडेंट होते जाएंगे. सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कभी किसी को कुछ नहीं दिलाती है, लेकिन सेंस ऑफ लर्निंग, सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत कुछ दिला जाती है. um, uh, now I'm going to, before I hand it over to Shalini ma'am, and I'm sure you will have questions as well, मैं आप लोगों को एक एक्रोनिम के साथ छोड़ना चाहती हूँ. For all visually impaired and non-visually impaired, I think this works for everyone. But what we really need to have is courage, right? क्या बोलते हैं, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा. So हिम्मत is something that gives us a lot of courage, and to live life also we need a lot of courage. So courage in the literal sense, and courage as an acronym. Now when I say courage as an acronym, I'm going to expand it for you. When you expand courage, well, ये हो गया, मैं क्या करूंगा, मेरे साथ हर वक्त मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, राइट? या वो डोरेमोन और नोबिता अगर किसी ने बचपन में देखा है, तो नोबिता हर वक्त होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे डोरेमोन मेरी मदद करो ना. सो ऐसा ना करके बी अ चैलेंज सीकर. कोई डोरेमोन हर वक्त आपको गैजेट देने नहीं आएगा. खुद ही ओन वट एवर यू डू. ब्लेम पास करना, डिफिकल्टीज को के लिए लोगों को, या ये नहीं हो रहा वो करना आसान है. बट इफ वी, but then the question that we need to ask ourselves is, क्या हम लोगों को समझते हैं? Do we understand people? Do we understand that, hey, they don't, R would stand for resilience. Resilience का मतलब होता है कि आप एक बार गिरे तो गिरकर आप वापस कितनी जल्दी और कितनी एनर्जी के साथ उठ पाते हो. रिमेंबर, लाइफ में है तो गिरना तो जरूरी है. स्मूथ सीज डू नॉट मेक स्किलफुल सेलर्स. अगर शांत समंदर है तो सेलर की स्किल कैसे डेवलप होगी? तो अगर हमारी लाइफ आसान हो गई तो हम स्किलफुल कैसे बनेंगे? तो इसलिए challenges को वेलकम करते हुए resilience is another thing that you want to build. And A stands for acceptance. Acceptance and also I would say adaptability. कि जो भी लाइफ में हमको मिला है वो बदलने वाला तो है नहीं, सिचुएशन तो बदलेगी नहीं, लेकिन आने वाली चीज को हम जरूर बदल सकते हैं अगर हम उसको एक्सेप्ट करें या उसमें हम अडेप्ट होने की कोशिश करें. सो एक्सेप्टेंस एंड अडेप्टेबिलिटी इज समथिंग दैट आई वुड रियली लाइक, आई लाइक टू बिल्ड इन माई सेल्फ. G, well, G would stand for something that I started with this particular workshop, and something that I really like to follow is gratitude, being thankful.
expressing gratitude towards what we have. It's easy to be trapped in what we don't have, but then that doesn't really lead us anywhere. So I'm really grateful for the Almighty to bless me with the parents that I have, NAB that came into my life, the organization that I work with, the colleagues that I work with, the parents, the friends that I have, the spouse that I have, the kid that I have, the opportunities that I get, the opportunities that I get to meet you today. I'm extremely grateful for all of that, because in all of this comes a lot, a lot of learning. And that's why gratitude, I feel, is one of the key ingredients, one of the key ingredients for being joyful, being happy, being able to sustain our life. um, E stands for, I would say, enthusiasm. See, enthusiasm to live life, enthusiasm to solve problems, enthusiasm to get where you want to. And that that enthusiasm is also called a zeal, in the sense, वो जज्बा जिसे कहते हैं, वो अगर हमारे पास है तो हमको कोई भी कहीं भी कुछ भी जाने से करने से रोक नहीं सकता. So remember these building blocks, and being sensitive, being happy, being elated, if you follow all of this, I think you can conquer any challenges that life may pose in front of you. So that's all I wanted to share, Zainab, unless we want to take any questions or maybe towards the end. So we'll take the questions towards the end. अभी Sure. मैं शालिनी खन्ना मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाइफ एक्सपीरियंस और क्या NAB है और कैसे उन्होंने शुरुआत की उसका थोड़ा बताएं.